Hello, dear all. Welcome to my YouTube channel. Today I am back here with Class 12 Flamingo Point 2, an elementary school classroom in Islam by Stephen Spender. Now, before starting the poem, let's talk about the poet. Stephen Spender. He is a poet and a novelist. He talks about the themes of social injustice and class inequalities in this particular poem. And he also, at the same time, he talks about two different and incompatible worlds, right? He talks about the two different worlds, that is of the rich and the poor. Okay. Now coming to stanza 1. Far, far from gusty waves. When he says far, far, right? From gusty waves. Gusty waves means strong blowing winds. Right? Very strong blowing winds. He says that who are far, far away from these strong blowing winds? That is these children, right? The children belonging to the elementary school classroom in the slum. They are not, as gusty waves means strong blowing, energetic, full of energy these winds are, but these children are very unlike those winds. They are very far away from the lap of nature, that is the gusty winds, and they are not that energetic. They are pale, they are dull, right? They say these children's faces, right, like rootless weeds. Rootless weeds means unwanted plants. Rootless weeds means unwanted plants. Okay, that means these children are compared to the unwanted plants. Unwanted plants because they are also unwanted, right? They are unwanted by the society. That is why they are called that. There it is said that these children's faces like rootless weeds. Okay, now here we come with two poetic devices in these two lines only, the first two lines. First is far, far, which is a repetition, right? And the second is faces like rootless weeds, which means it's a simile, it's a comparison. Okay. Then next is their hair torn round their pallor. Their hair torn round the pallor means the hair is scattered, torn is scattered, बिखरे हुए हैं उनकी pale faces के around, right? So they are scattered around their pale faces. अब ये तो जनरल उन्होंने बताया था कि इस्लाम क्लासरूम के बच्चे ऐसे हैं, राइट? वो अनवांटेड है सोसाइटी से, सोसाइटी डज नॉट वांट देम. और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई थी कि ये जो है बच्चे, इनके बहुत पेल लगते हैं, डल लगते हैं, मैल नरिश लगते हैं, और साथ में इनके जो बाल बिखरे हुए हैं अराउंड देयर पेल फेसेस. ओके, अब इनमें सबसे पहले बात करते हैं एक टॉल गर्ल की. द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड. और क्यों बोलते हैं वेड डाउन हेड? बिकॉज शी इज़ हैविंग अ बर्डन ऑफ पॉवर्टी. सबसे पहले पॉवर्टी मीन्स गरीबी का उसके ऊपर भार है, बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं. नेक्स्ट इज द पेपर सीमिंग बॉय. दूसरे बच्चे के बारे में बात करते हैं, उस जो क्लासरूम में पढ़ रहा है उसका वो है पेपर सीमिंग बॉय. जैसे पेपर होता है थिन और लीन, ही इज़ ऑल्सो वेरी थिन एंड लीन एज पेपर, राइट? और उसका क्या बोला गया था? पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज. विद रैट्स आइज जब बोला जा रहा है, उसकी जो आंखों को कंपेयर किया जा रहा है विद रैट्स आइज, दिस इज कॉल्ड अ मेटाफर. METAPHOR, मेटाफर, राइट? तो ये जो है हिज आइज आर कंपेयर्ड टू द रैट्स आइज. रैट्स की आंखें आपने देखी भी, चूहे की, रैट्स की वो कैसे होती हैं? जैसे इधर उधर कुछ ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए, राइट? सो आईज सर्चिंग फॉर
food. So that is why it has been said, the paper seeming boy with rat's eyes searching for food. अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट लाइन में, जब थर्ड बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, राइट. उसे एक शॉर्ट सा लड़का है, स्टंटेड है, राइट. अनलकी एयर, उसे अनलकी, अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज उसने अब बचपन से अपने जो फादर की एक डिज़ीज़ इनहेरिट की थी जिसका नाम है नाल्ड डिज़ीज़. वो नाल्ड डिज़ीज़ क्या होती है? डिज़ीज़ ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसमें जो बोन्स जो होती हैं बॉडी की वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी बोन्स हो जाती हैं, राइट. तो उसे कहा जा रहा है अनलकी एयर. उसको हम एयर प्रोनाउंस करेंगे HEIR, अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, राइट. अब ये बोला जा रहा है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. एक रिसाइटिंग का इधर दो मतलब है. रिसाइटिंग लिटरल वे से देखा जाए तो मतलब वो अपना जो है लेसन्स वहाँ पढ़ रहा है, ही इज़ रिसाइटिंग हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, राइट. और दूसरा है कि रिसाइटिंग मीन्स फिगरेटिव जो हम कहते हैं वो है ही हैज़ इनहेरिटेड द डिजीज़ ऑफ हिज फादर. उसने अपने फादर की वो बीमारी जो है ट्विस्टेड बोन्स की वो उसने इनहेरिट की है. और अब नेक्स्ट आते हैं हम एट द बैक ऑफ द डिम क्लास. अब ये फोर्थ एक चाइल्ड की बात कर रहे हैं जो सबसे पीछे बैठे हैं क्लास में. क्लास डिम है, अंधेरा है, बहुत कम लाइट है, राइट. उसमें रोशनी बहुत कम है. एंड वहाँ पर कौन बैठा है? वन अननोटेड. अननोटेड होता है अननोटिस्ड, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है. जैसे पीछे बैक बेंचेस के भी दिखाई नहीं देते अच्छे से. बहुत प्यारा सा बच्चा है, स्वीट है एंड यंग, राइट. लाइक हिज आईज लिव इन अ ड्रीम. वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है. ही इज़ इन हिज ओन वर्ल्ड एंड विच इज़ दिस वर्ल्ड ऑफ स्क्विरल्स गेम्स. स्क्विरल्स गेम का मतलब है ऑफ फन एंड फ्रॉलिक, मस्तीगर, राइट. और ये वर्ल्ड ऐसा है जो उसको अपनी जो ग्रिम रियलिटी, जो अपनी सीरियस जो रियलिटी है, जो अपने स्लम्स की, जिस दुनिया में वो रहते हैं, जिस सीरियस सिचुएशन में रहते हैं, उससे दूर ले जाती है. वो बाकी बच्चों से बहुत अलग है. बाकी बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में हैं वो बहुत उनसे अलग है, बिकॉज़ वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, खुश है और अपने मस्ती की दुनिया में है, राइट. ही इज़ लुकिंग फॉर फ्रीडम. He is outside in the outside world, अपना fun and frolic में, मस्ती में है, right. So we come to the stanza 2 now. Stanza 2 here is on sour cream walls. Sour cream walls means वो walls जो हैं neglected हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया जो दीवारों के तरफ, और वो क्या हो गई? फीकी पड़ गई हैं, फेड हो चुकी हैं, right. They are pale, they are faded. एंड उन वॉल्स पे डोनेशंस, राइट. जितने भी रिच पीपल वहाँ पर आए हैं वो डोनेशंस किसी प्रकार के लगा के चले गए हैं उन वॉल्स पे. जैसे फर्स्ट डोनेशन की बात करें, शेक्सपियर्स हेड. शेक्सपियर की एक पिक्चर लगी हुई है जो एक फेमस हमारे जो एपिटोम हैं लिटरेचर के, जो बहुत अच्छे राइटर हैं, फेमस राइटर, उनकी जो है फ़ोटो लगी है उनकी क्लासरूम में. नेक्स्ट इज़ क्लाउडलेस एट डॉन. क्लाउडलेस एट डॉन मीन्स क्लियर ब्राइट स्काई की फ़ोटो लगी है, मतलब बहुत जो बिल्कुल कहते हैं ना पोल्यूशन फ्री स्काई. एंड देन सिविलाइज डोम्स. डोम्स मीन्स राइडिंग ऑल सिटीज़. अब जब हम सिविलाइज डोम्स बोलते हैं, राइडिंग ऑल सिटीज़, राइडिंग ऑल सिटीज़ तो हमारा आ गया पर्सोनिफिकेशन ईयर, जैसे कोई राइड कर रहे हैं, राइट. राइडिंग ऑल सिटीज़, पर्सोनिफिकेशन हमारा पोइटिक डिवाइस आ जाता है यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच. एंड जब हम बोल रहे हैं सिविलाइज डोम्स, मतलब कि हमारी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस दिखा रही हैं वो जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, दोज मॉन्यूमेंट्स, दोज हाई बिल्डिंग्स, राइट. दे आर वेरी हाई एंड वो सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस दिखा रही हैं. एंड ये सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं उनके क्लासरूम में. एंड और क्या लगा हुआ है? बेल्ड फ्लारी टायरोलीज वैली. टायरोलीज वैली की फ़ोटो लगी है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वंडरफुल फ्लावर्स हैं, वो सीनिंग ब्यूटी ऑफ नेचर है,
ओके, एंड देन एक ओपन हैंडेड मैप लगा है. ओपन हैंडेड मैप क्या होता है? मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो बनाया गया होता है बाय डिक्टेटर्स वगैरह, जिन अपनी मर्ज़ी से उनकी, राइट. तो एक ओपन हैंडेड मैप भी लगा हुआ है, एक वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है उधर उनकी वॉल पे, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो जो नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं. पर ये बच्चे जो हैं इन चीज़ों से अनजान हैं. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नेक्स्ट फ्यू लाइन्स. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, पर इन बच्चों के लिए, राइट, दीज विंडोज़ मीन्स द विंडोज़ of their elementary slum classroom, right. कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि these windows जो हैं किसके लिए बोला गया, right. So these windows, not this map, ये जो मैप लगा है वर्ल्ड का वो नहीं, पर ये जो इनकी स्लम क्लासरूम की विंडोज़ हैं. दिस इज़ देयर वर्ल्ड, यही इनका संसार है. बिकॉज ये दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द स्लम्स, राइट. इनकी लाइफ जो है सीमित है इन स्लम्स के अंदर. ओके, नाउ नेक्स्ट बोला जा रहा है वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग. पेंटेड विद अ फॉग का मतलब होता है कि जो ये फ्यूचर है इनका, दैट इज़ इट इज़ पेंटेड विद अ फॉग मीन्स बहुत मिस्टी है, बहुत अनक्लियर है, बहुत हेजी है. देखा ना फॉग कैसी होती है, जब धुंध होती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, राइट. बिल्कुल अनक्लियर होता है. तो इनका फ्यूचर भी है जो है बहुत अनक्लियर है, बहुत मिस्टी है, राइट. तो यहाँ पर जो हमारा हम पढ़ रहे हैं पेंटेड विद अ फॉग, दैट इज़ वेरी मिस्टी एंड इट इज़ वेरी अनक्लियर. ओके, देयर फ्यूचर. ओके, नेक्स्ट है अ नैरो स्ट्रीट. उनकी स्लम्स में क्या है, पर उनको विंडोज़ में से क्या नज़र आती है? बस एक वो जो पतली सी गली है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, जो जिसके ऊपर एक लेड स्काई मीन्स ऐसे पोल्यूशन से भरा हुआ, इंडस्ट्रीज़ की पोल्यूशन से, इंडस्ट्रीज़ के धुएँ जो आते हैं उनकी पोल्यूशन से, स्मोक से, वो पोल्यूटेड स्काई, राइट. दैट मीन्स एक तरह इसका मतलब है लेड स्काई एक ना पन भी होता है जो हम कहते हैं पोइटिक डिवाइस, जिसका मतलब है कि वो इट इज़ अ जो ये स्काई, कोई भी जो इनको, ये ऐसी स्लम क्लासरूम्स हैं जिसमें इनको कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. दे डू नॉट ऑफर देम एनी अपॉर्चुनिटीज़, राइट. इनको कोई भी ऐसे साधन नहीं है अच्छे से, ठीक है. इनको कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं. इट डज़ नॉट प्रोवाइड देम विद एनी अपॉर्चुनिटीज़. अब नेक्स्ट जो बोला जा रहा है कि फार फिर हमारा आ गया रेपिटेशन, और फार फ्रॉम रिवर्स केव्स, फार फ्रॉम रिवर्स केव्स जब हम बोलते हैं, दैट मीन्स इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम नेचर. एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स नॉलेज, राइट. स्टार्स ऑफ वर्ड्स इज नॉलेज. एक सील्ड इन विद अ लेड स्काई भी आया है हमारा एक पोइट्रिक डिवाइस वहाँ पर, विच इज़ अ मेटाफोर. कमिंग टू स्टैंजा 3. श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल. अब शेक्सपियर को विकेट क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज शेक्सपियर जबकि बहुत बड़ा एपिटोम ऑफ लिटरेचर है, एंड ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स, राइट. ही इज़ अ फेमस प्ले राइट. पर इसको विकेट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ शेक्सपियर. उनको इनके बारे में मालूम नहीं है, राइट. दे एंड द वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर वर्ल्ड. एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज द मैप डिपिक्ट्स द वर्ल्ड एंड दे have never got an exposure to the outer world. So that is why it is referred to as the map a bad example. And now next is with ships and sun and love tempting them to steal. With ships means adventure, love and acceptance. अब जब हम बोलते हैं with adventure, love and acceptance, ये तीन चीज़ों से they are devoid, right? ये महरूम है इन चीज़ों से. तो जब कहते हैं ना ये चीज़ें नहीं हो तो क्या होता है? दे आर टेम्पटिंग देम टू स्टील. सिंस दे डू नॉट हैव दीज थिंग्स विद देम,
तो दे आर टेम्प्टेड टू स्टील, उनमें उनको ये चीज़ें प्रोत्साहित करती हैं चोरी करने के लिए. दे आर टेम्प्टेड टू स्टील. नाउ वेयर लाइव्स दैट slyly turn in their cramped holes. You can see a picture here. Then what does this picture show? That cramped holes means their houses are very small, right? Holes are the hutments, the houses, they are very small and there are many people, they are filled to capacity. मतलब बहुत सारे लोग इन houses में रह रहे हैं. So that means they are very cramped, मतलब, and they are known as that their entire life is spent in these cramped holes, right? And next is from fog to endless night. From fog to endless night means fog symbolize कर रहा है इधर. What is fog symbolizing? Ignorance कि कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता. And endless night is darkness, तो which is leading them to darkness. जो उनकी लाइफ है it is full of darkness, right? कोई hope नहीं है, hopelessness जिसे हम कहते हैं, continuous torture. Okay, now we come to the next few lines, that is on their slag heap. Slag heap क्या होता है? Dirt, scholar, right? SQUALOR, right? On their slag heap. जो slag heap है compared की जा रही है उनके जो malnourished बच्चों के से, right? Because they are malnourished and these children wear skins. और ये जो malnourished children है, जो wasted इनकी bodies हैं, जो malnourished हैं, इनके जो skins में से इनकी bones नज़र आ रही हैं, right? bones झांकती हुई नज़र आ रही हैं, right? they are saying skins peep through bones. उनके इतने वो malnourished है, इतने दुबले पतले से हैं कि उनके skin से bones उनकी नज़र आ रही हैं, right? and spectacles of स्टील. जब बोलते हैं वेयर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, ये जो है दिस इज़ अ मेटाफर. एंड जो हमारा जो है एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील नेक्स्ट बोला गया है. स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील मीन विद मेंडेड ग्लास, मतलब उनकी जो स्टील की जो उनकी जो स्पेक्टिकल्स हैं जब वो टूट जाती हैं तो वो जो है क्या करते हैं, उसको रिपेयर करके टुकड़ों को, सारे टुकड़ों के इकट्ठे रिपेयर करके उनको फिर भी पहनते हैं, just because they cannot afford a new pair of spectacles. उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनकी बहुत pathetic situation है, right? बहुत pathetic condition है. They are very poor, they are down with poverty and so they cannot afford buying another pair of spectacles. And like bottle bits on stones, यहाँ बोल रहे हैं glass like bottle bits on stones, ये एक simile हो जाता है. And लाइक बॉटल विथ्स ऑन स्टोन्स का मतलब है जैसे आप देखते हैं ना कुछ स्टोन वॉल के ऊपर जो छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं, जिनकी जो स्पेक्टिकल्स हैं उनके ऐसे बारीक शीशे हो जाते हैं, वो टूटती हैं, इतने बारीक पीसेस को भी वो मेंड करके रिपेयर करके उनको दोबारा पहनते हैं, राइट? बिकॉज दे आर वेरी पुअर एंड दे कैन नॉट अफोर्ड देम अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. सो all of their time and space are foggy slum. Their life is restricted or constrained to these foggy slums. Foggy slums means these dark slums, right? These bleak slums, these dull slums. उनकी पूरी ज़िंदगी उन foggy slums में बीत जाती है, right? So blot their maps. Blot क्या होते हैं? जैसे मार्क करना पेन के साथ. देयर मैप्स विद स्लम्स, उनके जो मैप्स पर स्लम्स को का एक मार्क लगाओ, राइट? बिकॉज यू नो हियर वो बात कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स है. मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स. तो कहते हैं ये जो दोनों डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, रिच और पुअर का, इसके गैप को ब्रिज कर दिया जाए, राइट? जो इसमें इतना सारा गैप है आपस में, उसको ब्रिज कर दिया जाए. एंड ये जो है इस वर्ल्ड के मैप पर इनके स्लम्स को भी मार्क कर दिया जाए, राइट? इट शुड बी मार्क्ड ऑन दीज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. द स्लम्स शुड बी मार्क्ड एज बिग एज डूम. डूम क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, राइट? डेथ, ओके. और ये जो है बिकॉज वैसे भी दे आर
इनकी कंडीशन इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन. कहते हैं जैसे इनकी कंडीशन इतनी पैथेटिक है, बैड है, राइट. तो इनके लेट देम गेट इतना बड़ा, तो जितनी इनकी कंडीशन ख़राब है एटलीस्ट उतना बड़ा मार्क तो एटलीस्ट वर्ल्ड के मैप में उनके लगना चाहिए. दे शुड बी मार्क्ड. सो द स्लम्स should be marked on the world map to bridge the gap between the two worlds. And next, let's come to the next few lines in the forthcoming slide. That is stanza 4. We start here. That is unless governor. अब यहाँ पर ये जो poet है हमारा स्टीफन स्पेंडर जो poet है, he is trying to make an appeal. वो एक request कर रहे हैं कि गवर्नर को, इंस्पेक्टर को, विजिटर कि आप इधर आइए, राइट. एंड वो बोलता है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, राइट, मतलब जब तक ये नहीं आएंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो. अनलेस दे कम हियर, जब तक ये स्लम में नहीं आएंगे इनके, तो तब तक जो है दिस मैप विल नॉट बिकम देयर विंडो, राइट. जो वर्ल्ड है, ओके, दे विल नॉट गेट एन एक्सपोजर टू द आउटर वर्ल्ड. उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आएँ एंड इन बच्चों को बाहर के वर्ल्ड में, बाहर के एनवायरनमेंट का एक एक्सपोजर दें, नेचर में लेकर जाएं इनको. एंड दीज विंडोज़ मीन्स द विंडोज़ ऑफ देयर एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, राइट. दे आर सेइंग दैट दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. कैटाकॉम्स क्या होती हैं? ग्रेव्स, राइट. जैसे इनकी जो लाइव्स हैं, ये विंडोज़ में इनकी जो लाइव्स जो हैं बंद हैं, ट्रैप्ड हैं, राइट. इन्हीं स्लम्स में, इन्हीं डर्टी स्लम्स में, इन्हीं स्लम जो फुल ऑफ डर्ट है, स्क्वालर है, सारी ज़िंदगी इसमें बीत जाती है. जैसे कहते हैं लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जैसे ग्रेव्स होते हैं, राइट. इनकी लाइव्स को उनके साथ जो है अंडरग्राउंड सिमेट्री या ग्रेव्स के साथ कंपेयर किया गया है. और ये जो है लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स है, ये हमारा एक और पोइटिक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं सिमिली, क्योंकि लाइक और एज के साथ जो भी आती हैं पोइटिक लाइंस, उनको हम कहते हैं सिमिलीज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज़ ब्रेक ओ ब्रेक. तो फिर वो क्या कहते हैं कि ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, राइट. रिलीज़ कर दो इनको, सेट देम फ्री टिल दे ब्रेक द टाउन, राइट. इनको फ्री कर दो, बाहर ले जाओ, टिल दे ब्रेक द टाउन. कहाँ ले जाओ? टू द टाउन. किन से रिक्वेस्ट करें? टू द गवर्नर्स, राइट. टू द गवर्नर्स एंड टेलिंग देम, टू द हायर ऑफिशियल्स कि वो आए यहाँ पर और इन बच्चों को एक्सपोजर दे, राइट. फ्रीडम दे. ब्रेक ओ ब्रेक. ब्रेक ओ ब्रेक हमारा रेपिटेशन आ जाता है. एंड कहते हैं ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब वो टाउन में जाएं. एंड शो द चिल्ड्रन क्या? द ग्रीन फील्ड्स. ग्रीन फील्ड्स से देखिए, ग्रीन इज कलर, फिर हैप्पीनेस उनको, ताकि खुशी मिले, राइट. एंड फील्ड्स क्या? नेचर को डिपेक्ट करता है. ग्रीन फील्ड्स और गोल्ड सैंड जो आगे आपका नेक्स्ट लाइन में आता है, वो भी है. दैट इज़ इनको नेचर से एक्सपोजर, नेचर का एक्सपोजर दीजिए इनको, राइट. आप लेकर इनको जाओ, बच्चों को एक्सपोजर दें. किनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हायर ऑफिशियल्स को, राइट. एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स. और उनको एक्सपीरियंस दो रिच कलर्स का ऑफ द ब्लू वेव्स, जब हम कहते हैं रन अज्योर, राइट. उनको एक्सपीरियंस दो वो ब्लू वेव्स का. उनको फ्रीडम दो. टेक देम इनटू द आउटर एनवायरनमेंट, टेक देम इनटू द नेचर and give them happiness, right. And let them learn something from nature. Okay, next is बोलते हैं and let their tongues run naked into books, right. कि इनकी जो है tongues को, like let their tongues run naked into books means give them some learning, give them some knowledge, right. Learning किससे? from pages of books. जब हम कहते हैं the white from the white and green leaves. The white and green leaves means the pages of the books open, right. Not only learning from the books but also from the pages of the books but also from nature. And sun जो हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा उसका मतलब है enlightenment,
राइट, एंड हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. सन होता है इनलाइटनमेंट. जब उनको नॉलेज मिलेगी, लर्निंग होगी, अवेयरनेस होगी, नॉलेज मिलेगी, देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज दे आर गोइंग टू create their own histories, right? Whenever they will get knowledge, there will be enlightenment, right? And कहते हैं ना, हिस्ट्री उन्हीं की होती है जो आउटशाइन कर लेते हैं अदर्स की, राइट? वही अपनी हिस्ट्री बनाते हैं. ओके, सो दे ओनली, हिस्ट्री मीन्स दे मेक देयर मार्क. वो अपने लिए एक स्थान बनाते हैं जिनकी जो बहुत करेज रखते हैं और जो नॉलेजेबल होते हैं एंड जो enlightened हो जाते हैं. So he says they will then, once they get knowledge, they will get enlightenment, and enlightenment जब उनके पास आ जाएगी तो they will be able to create their own identities. History theirs whose language is the sun. Thank you.